can give you a whole lot of points. It is there. I can send it to you. If you are asking what is my view, it is all there in the PowerPoint presentation, which I didn't want to show because then it becomes a lecture. I will show you the PowerPoint to answer your queries. Okay. Yes. Now I go on and on. This is, if you are asking my view, this is my view. But these are the things I derive from you by asking questions. Right? So that is my style. I don't want to stand here and go. Slide method has been changed now. I cannot do it. Ek to, I don't believe in that philosophy. Yes. So I ask you questions so that I derive thoughts. And this is the what is the board work, shows the kind of learning that is happening. I don't believe in PowerPoints. It may be a weakness or a strength, I don't know. Oh, it's a good For thing. me, it is interactive. Yeah, innovative. It is good. For me, why I said it was a wonderful session is I managed to ask questions and derive things from almost 95% of you, which I will not be able to do if I go on with it. Right? So please don't ask this question. Yes. What is your? As a facilitator, that's not my job. Keep pouring information. Well done, ma'am. Okay, well done. thank you. Well done. You have Nice, done well. nice. Am I clear? Clear, very clear. Thanks. Fine. So, last slide. So what we can do now is This website. this website is the reference I the source to derive this put down. There are many more references if you want, you can use this. But you will get the full text. I am sending this to you. This was a document I referred to. So These PowerPoints are also you are sending. I am sending everything. But the material we got was totally in Hindi. There was not an iota of English in that, what we received so far. Especially in J&K state, there is a big problem that we don't know Hindi. What materials did you get? English. Whatever The first material. one which was sent to us. Not complete, I think. Yeah, I have gone through it from A to Z. There is nothing English in it. What I have received, I don't know what you have received. What the Kashyap ma'am said. You're saying about Avasthi ma'ams? No. Avasthi ma'am. I was Yeah. student. Yeah, since she is our coordinator, we have to bring our point to her. No, actually, we have both versions, Hindi Okay. and English. So, if she has sent you the PPTs of Hindi, maybe she was concerned that you will not be able to understand English. So, अगर मेरे पास नहीं आया है. स्क्रिप्ट उर्दू है, स्क्रिप्ट देवनागरी नहीं है, बाकी वो आपसे ले लेंगे. No, please यार, stop it. केस स्टडी पर्सपेक्टिव सारा मैम ने मेल किया था, क्योंकि तब तक वो गूगल बना नहीं हुआ था. Kashyap ma'am, she mailed it to Krishna Avatar sir, and he mailed to all other All of fellows. Yes. Only in Hindi. नहीं नहीं इंग्लिश में मेरा भी इंग्लिश में है. But I have not received in English. After that, no material has been sent. Fine. See, the thing is, Kashyap is not around. She will come back by 25th, I think, 25th or 26th. So And after Charu ma'am that, also she is not sent actually. I know. I will send, if not today, tomorrow, and Charu will also send. ये 3 हुआ है ना अभी तक? ठीक है, ठीक है. So you don't get it. Don't worry. It's my responsibility. ठीक है. Fine. So now, based on this qualities of a coach, what we have listed down, I want to divide you into groups. This is 1, 2, 3, 4, 5. 5 groups. और आप चुन लीजिए आपके बीच में एक स्कूल हेड और एक टीचर को, और जो भी रोल्स देना चाहेंगे एक दूसरे को आप दे सकते हैं. You can all come here. लेकिन
most important will be the school head and the teacher. Based on this situation, as a coach, आप दोनों के बीच का communication and keep all these things in mind. Last में आपको problem जो है उनको solve करना है और आप confidence. Most of these things can be covered in the way you handle the situation as a coach. Okay. So there's a coach, there's a teacher, and there can be many others also according to the situation. A small act, na? Small play. Role play. You can come here and you can do. This space is available for you. Is that clear? तो हम आपको 5 groups में बांट रहे हैं, ठीक है? You can start numbers, मैम. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. And give your observations. Okay? Write your observations. मीटिंग तो बैठ सकते होंगे सर। अरे पहले रुक। टीचिंग के दौरान जो कुछ समस्याओं का समाधान होता है और इस पर हमारा अपनी प्रेजेंटेशन आप देखेंगे और इनके बेस पर हमने कोशिश की लीजिए सबसे पहला ग्रुप का जो है प्रेजेंटेशन है जबरदस्त नाटक कर रहे हैं क्या कर रहे हो? ये टीचर है क्या? टीचर तो कहीं से नहीं है स्टूडेंट. You have to make the observation. Don't commit anything. मेरा यार बच्चों हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कोई देखो वहाँ प्रदीप के बगल में हम बैठते हैं, तुम यहाँ हटो इधर जाओ। रोज बैठती है यार तू मेरे साथ ऐसा नहीं मेरे से मस्ती करता रोज चुरा लेता मैं आया लड़ना अच्छी बात नहीं होती सर पहले मैं आया। चलिए आप ही बैठ जाइए बैठे बैठिए बीच में मस्ती करता है सर आप बैठिए सर ये पढ़ने नहीं देता ना, वो अच्छा पढ़ता है। अभी पढ़ाई चालू नहीं हुई है पढ़ने कहीं कैसे नहीं दे रहा है बैठे सर, बैठ जाइए बैठिए राजेश बैठिए जो क्या आपको बताएं कल हम नहीं पढ़ा सर, हम पढ़े पढ़ा थे वो पेड़ आप लोग पेड़ बताया सर पहले हम पेड़ के बारे में पढ़े उसके पहले कल हम क्या पढ़े थे उषा आप बताएं कल सर आप बताए थे कि आंवला के बारे में कुछ बताए थे और आज के बारे में बताए थे कि कल क्या जामुन उमुन के बारे में कुछ पढ़ाएंगे, तो हम अभी सोचे नहीं कि उसमें आप क्या पढ़ाएंगे। वो शाबाश बैठिए जामुन के बारे में हमने कहा था कि आज पढ़ेंगे। जामुन क्या होता है सर जामुन ये राजेश ये बताएं जामुन आपने कभी खाया है कैसा होता है काला काला होता है। शाबाश तो राजेश को पता है जामुन काला काला होता है वो छोटे छोटे अंगूर टाइप आते हैं सब खट्टे खट्टे शाबाश वही खट्टे अंगूर खट्टे हैं हाँ ठीक बैठिए और चलिए आज हम जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। सर वो ऐसा काला होता है क्या, वो जो
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जामुन का पेड़ जो है मैं आप लोगों को बना के बता रहा हूँ। दिखा के भी पेड़ अरे पेड़ काला नहीं होता है, ये पैन काला है। देखिए पेड़ काला नहीं होता है, मैंने ये पेड़ बनाने की कोशिश की है। क्या आप लोग पेड़ बना पाएंगे? अपनी कॉपी निकाल कर, कॉपी निकालिए और पेड़ बनाइए। इसके लिए ये एक कॉपी ले। अरे शांत बैठो राजेश, ये कॉपी सर, इसकी कॉपी लीक हो गया, कागज दे दे। झगड़ा करना उचित बात नहीं है। क्यों झगड़ा करते हो? पढ़ने आए हो या झगड़ने आए हो? पेन देना। लिखेगा नहीं, कुछ नहीं, सबसे पेन मांग रहा है। प्रदीप, झगड़ा करने का काम करते हो। झगड़ना अच्छी बात नहीं होती है। आप हंसते हैं, हम भी हंसेंगे सर। आप भी हंसते हैं। ये अच्छी बात है। जामुन पढ़ाइए सर। ये जामुन का पेड़ है सर। सर मैं पत्तियां तो नहीं, अभी पत्थर चल रहा है, सूख गई है पत्तियां। मान लेने में कुछ जाता है। आगे चलो सर। अच्छे लड़के को दिखाया जा रहा है। ऐसा सर ये काम कर रहा हूं सर, वो चल जा रहा है। अरे राजेश, तुम बिना पूछे कैसे बाहर जा रहे हो? बिना पूछे चला गया सर, आप मैं भी चला जाऊं। चलिए कोई बात नहीं, जितने हैं उनको पढ़ाने में उन्हें पढ़ाऊंगा। जिनको नहीं पढ़ना है वो क्लास छोड़ कर आप पेन लिया, आप बस लो। ठीक है बच्चों, जामुन खाना हम सबको अच्छा लगता है। क्या आपने कभी जामुन खाया? क्या चल रहा है? राजेश से वहाँ बैठ जाओ। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। मैं मान लेता हूँ, मैं कल से नहीं मानूंगा बिल्कुल आप। बिल्कुल मैं नहीं मानना चाहता, अगर वो ऐसे करेगी तो क्या पढ़ाया? ये बहुत ही इनोसेंट क्लास है जी, मैं क्लास नहीं लूंगा। वो जो आपने पढ़ाया वो उनसे पढ़ाएंगे। फिर मेरी कॉपी है भाई, उधर जाओ ना। तेज पढ़ते हैं, भी तेज है। ये चीज़ अपने पढ़ लेते हैं। बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी। देखिए यदि आपको पढ़ना है सर पढ़ना है, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए सर। बहुत सीरियस। जामुन खिलाए, पढ़ाइए नहीं सर। मास्टर से सब बड़ा लड़का ही है सर। बच्चों, आप सब अपनी किताब निकालें, पेज नंबर 24। चलिए बाकी लोग भी सुनिए। जामुन का पेड़ व्यंग उद्धार का पाठ है। व्यंग जानते हैं? व्यंग का मतलब होता है जब कोई बात सीधे तौर पर न कहकर किसी अन्य युक्ति के माध्यम से कही जाए, उसको व्यंग। ये जो जामुन का पेड़ है, ये जामुन का पेड़। अब अच्छा ये बताएं, पेड़ से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? पेड़ से हमें सर लकड़ी मिलती है। नहीं, लीची लीची कल खाई थी सर, कल। अरे जामुन के पेड़ की लकड़ी से पेड़ से मिलती है, सर को पता नहीं है, सर को पता नहीं है। हमने लकड़ी कहा सर। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि जामुन का पेड़ पर व्यंग पढ़ाएंगे, अब इसकी उपयोगिता आपने पेड़ के बारे में पूछा, पेड़ पे लीची लगती सर। अरे भाई जामुन के पेड़ में लीची कैसे लगी? आपने पेड़ कहा, जामुन का नहीं कहा। लीची पड़ गई। ये तो पालन कर देंगे ऐसे बच्चे। कैसा अहम क्लास मुझे मिल गया है। आपको पता है कि नहीं? हम बहुत सीधे बच्चे हैं सर, सिलाई तो दिखती नहीं। बहुत सीधे सर। सर बच्चे सारे अच्छे हैं सर। बच्चे सब अच्छे सर। ये कितना अरे सीधा सब अच्छे लड़के हो। सर आप कैसे कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे नहीं? सरकार पैसा देती है पढ़ाने के लिए, कैसे नहीं पढ़ाएंगे? अरे भैया खाने के लिए पैसा देती है, तो तुम पढ़ना चाहोगे तो भी तो पढ़ाऊंगा। हाँ तो हम तो बैठे ना, चुप बैठ, चुप 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 चुप। हम पढ़ेंगे हाँ जी। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ वैसे तो हमें फल देता है, हवा देता है, वातावरण की शुद्धता के लिए। लेकिन हम जिस जामुन के पेड़ की बात आज करेंगे, ये जामुन का पेड़ प्रदीप। ये जामुन का पेड़
मंत्रालय के सामने लगा था, एक जामुन का पेड़ मंत्रालय के सामने लगा था और इतने में बहुत जोरों से तूफान आया और जामुन का पेड़ जड़ से उखड़ गया, जड़ से पेड़ उखड़ गया। इतने में एक आदमी मर गया था। मर गया सर? अब क्या हुआ? अरे नहीं, वो मरा नहीं। अच्छा, मरा नहीं। मरा था। बहुत सारे ऑफिस से लोग निकले। सर ये खड़ी हो गई। बोलो साहब क्या पूछ रहे हैं? मर गया तो उसके बाद उसका क्या होगा? अभी मरा नहीं है। सर आप इसी से क्यों पूछते हैं, हमसे क्यों नहीं पूछते? जामुन के पेड़ की जब आदमी दबा हुआ है तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हो सर? राजेश, अरे मैंने अभी क्या कहा? सर अपना है ना, ऐसे वैसे ही तंग करता है सब टीचर को पढ़े चुपचाप। उषा है, उषा क्या बोली? क्या बोली? अरे ये कैसा ये लड़ाई का खड़ा है? कह रहा हूँ पढ़ने कुश्ती लड़ने आए हो क्या? मुझे डांट रहे हैं सर। सिर दिखाने डांटने का शौक नहीं है मुझे, मैं अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाऊं डांट कर। गुस्सा भी नहीं आता, गुस्सा करूं सोचता हूं हंसी आती है। सर पढ़ाओ ना। अच्छा अभी इन दोनों कौन सा खत आता है अभी बाजारों में? क्या हुआ उसका? जामुन उसका क्या हुआ? जामुन बताइए। मैंने सवाल के नीचे है वो बताइए। कहा पूछे है आपको नहीं। जामुन में वो अभी इन दिनों बहुत मीठे पीले पीले फल आते हैं। सर जामुन में आदमी फंस गया सर। आप इसका बताइए क्या? सर को याद नहीं किया। वो जामुन के पेड़ में जो आदमी दबा हुआ है, बार भटकते हो। वो बेचारा कितना कड़ा रहा। कुछ लोग निकले, ये पेड़ में आदमी दबा है, इसे हम कैसे निकालें? सब लोग निकले तो कुछ लोग सब लोग अरे कहाँ जा रहे हो? पेड़ उठाइए सर, पेड़ उठाइए सर। पेड़ को भी नहीं उठाना है, बैठो। पेड़ को नहीं उठाना है, जब कहा जाएगा तब पेड़ उठाना। ये बड़े होशियार बच्चे हैं भाई, पेड़ उठाने चले जा रहे हैं। सर वो एक फिल्म देखी थी, उसमें बच्चा है ना, वो मैडम ने बताया था वीडियो, उसमें बच्चा है पेड़ को ही उठाता है, तो ये सीख गए सर, वो पेड़ उठाने चले गए और प्रशंसा हुई बच्चे की। चुप रहो मेरे बाप, मैंने अभी तुमसे जब बोलने कहा कहूँ कभी बोलना, अभी नहीं बोलना है तुम्हें। ठीक है सर, पढ़ाइए। वो जामुन के पेड़ के नीचे जो आदमी दबा है, वो करा रहा। कुछ ऑफिस के लोग निकले, अरे ये तो पेड़ दबा हुआ है, आप पेड़ के नीचे आदमी दबा है, चलो आदमी को निकाले। तो कुछ कहने लगे, नहीं इसको पेड़ जो है ये पहले ये तय करना होगा कि ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है कि कृषि विभाग का है, इसकी फाइल चलेगी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है सर? वो जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में जो पढ़ाई होती है वो उस विभाग को कहते हैं। पढ़ाई होती है सर, देखभाल होती है। पेड़ पौधों के बीच में पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है सर। हाँ, देखभाल भी होती है। बगीचे के अंदर लोग पढ़ते हैं सर। देखभाल वो हॉर्टिकल्चर है सर। ऐसा देखभाल नहीं जी सर, बगीचा को समझो सर, समझते भी नहीं हो सर। वो बगीचे में बच्चे पढ़ते हैं तो वो हॉर्टिकल्चर है सर। बच्चे पढ़ते हैं वो हॉर्टिकल्चर नहीं है। तो आपके बगीचे में पढ़ाई होती है। बगीचे की पढ़ाई वो हार्टिकल्चर और कल्चर में क्या अंतर होता है? अच्छा सवाल है सर, अच्छा सवाल है सर। बहुत बढ़िया सवाल है राजेश, लेकिन इसके लिए तुम कल मेरे घर आ जाना। मारोगे तो नहीं। अब वो जो कुछ करना है वो मुझे करना है, तुम्हें नहीं। एक बार तो आपने डाटा जो पेशाब करने गया। मोटका लड़का तो बहुत ही टाइम हो गया। चलिए जामुन के पेड़ की पढ़ाए थे ना कि जामुन में अम्ल पाया जाता है, सही में पाया जाता है क्या जामुन? अरे अम्ल पाया जाता है, लेने गया जी, अभी मुझे नहीं लेना क्लास। अरे क्रिकेट में भी अपने आप तानाशाही चला। नमस्ते मैडम।
लास्ट जसविता से मैं पढ़ने गया था, चेन फोटोमोबिलियस में उन्हें जो मैं विषय उन्हें देना चाहता था, बहुत अच्छी तैयारी रह गई। जब क्लास लेते थे मैं साइड में से गुजर रही थी, मैंने देखी थी क्लास में क्लासेस हो रही है और घंटी बज गई, बच्चे क्लास में बैठे और आपकी पीरियड मैडम आप तब तक क्लास में आपकी अपने सब्जेक्ट में पकड़ बहुत अच्छी और जैसे आपने क्लास में बच्चों से क्लासेस ली, काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है सर जो आपने अनुभव किया, तो सबसे पहले जानना चाहूँगी आपने जो अनुभव किया। हमारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ, जो भी एडमिशन होता है अच्छे घर से आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रूरल एरिया से भी आते हैं, दोनों की मिक्स ग्रुप है। और मैंने देखा कि आपका और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हुआ, तो पहले आप मुझे बताएं कि आपने हमारे बच्चों में से क्या अच्छी बातें आपने पाई। पढ़ने के लिए भी बहुत सारे काम उसके लिए बहुत अच्छी बात, मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट को हमारे बच्चों के सामने अच्छे ढंग से उसको पेश किया और आपने अपनी कोशिश की कि बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करें और जो आप पढ़ा रहे हैं उसको सही ढंग से पकड़ सकें। आपकी ओर से प्रयास अच्छा था। मैं कुछ फीडबैक के रूप में आपको बोलना चाहूँगी और वो ये है कि जब आप पढ़ा देते मैंने देखा कि आप लेसन प्लान बनाकर के आए थे और आपने उसका प्रयोग भी किया, बोर्ड वर्क भी किया आपने और हर तरह से एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश की। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट रहे, काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हो रहे थे जो क्लास को बहुत एक्टिव रखा, ये बहुत अच्छी चीज़ हमने पाई आपने। और आपके पढ़ाने का जो तरीका है, जो एग्जाम्पल से आप दे रहे थे बहुत अच्छा रहा। एक चीज़ मैंने पाया कि हंटिंग लग चुकी है, पहले लग चुकी टाइम पहुँच चुके थे, आप इतने पढ़ाने में इतने मशगूल थे कि आपने समय का इससे क्या हुआ, आपने क्लास दूसरे टीचर का क्लास ले लिया। दूसरी बात कि जैसे आपके लेसन प्लान आपने बहुत अच्छे बनाए, मैंने इसको चेक भी किया, लेकिन बीच में हमारे बच्चे कुछ ऐसे आपको सवाल कर रहे थे जिसमें मैंने पाया कि उन्होंने अनुभव किया कि आप टॉपिक पर आप टॉपिक से हट गए और जिसके चलते बच्चों में एक एंजाइटी थी, वो परेशान थी कि आपके टॉपिक कुछ हो रहा है और आप जामुन की बात पढ़ाने के लिए आए हैं, आप आंवले की बात कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से बाहर चले गए। ये होना भी चाहिए, बस अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे भी लगता है। आप ऐसे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी आपकी कमांड है, लेकिन मैंने ये पाया देखिए बच्चे भगवान क्या हो रहा है, उनकी इनोसेंट जो बातें हैं, व्यवहार है, उससे हमें सीख मिलती है। लेकिन मैंने ये पाया सर कि आपके बच्चे मेरे बच्चे आपके जिससे मैंने देखा कि जैसे राजेश वो बाहर निकल के चला गया, उस देर के बाद आया, इस प्रकार से उसमें डर की भावना आ जाएगी, वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। आपने ये भी अनुभव किया जब आकर के पूछा कि सर आपने क्या पढ़ाई है एब्सेंट में, आप मुझे बतला दो, अदरवाइज हम पीछे पड़ जाएंगे, तो आप जरूरत है और ताकि सभी बच्चे इक्वल में आगे बढ़ सकें और अच्छी तैयारी करके आगे बढ़ सकें। अगली बात ये भी पाया कि आप एक दो बच्चे को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दो बच्चे को, इसमें मैंने पाया कि वो बार बार बोलते कि आपकी अनुष्का को पूछते हो, मुझे नहीं पूछते, जो नहीं भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा उससे भी
सवाल करूँ ताकि वो भी उसको लगे कि मैं भी कुछ जानता हूँ, उसमें भी कुछ टैलेंट है, मैं भी अपने जो अच्छी बात है उसको निकाल सकता हूँ, उसमें कुछ नॉलेज है। तो ऐसी बातें मैंने पाई। फिर ओवरऑल क्लासेस काफ़ी एक्टिव रहा, अच्छा रहा। मैं आपको कांग्रेस करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि आने वाले दिनों में आप धीरे धीरे आप इस एटमॉस्फेयर से फैमिलियर हो जाओगे तो ये अच्छे टीचर जहाँ तक बन सकेगा मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ कि मिल करके हमारे बच्चों को जो दराज से भी आए हैं उनको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे आज के बच्चे कल के भविष्य इसी टारगेट को लेकर हमारी प्यारे बच्चों आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके क्लास में बहुत एक्टिव रखा और सबको हंसाया है। हम लोग को बहुत डांटे पर आप उनको नहीं डांटा। मैंने प्यार से ही डांटा उनको, प्यार डांटने के कई तरीके होते हैं। मैंने प्यार से उनको समझाया था कि आप सिखा दीजिए वो ऐसे ही डांटे, अब से वो नहीं डांटे और प्यार से पढ़ाएंगे आपको। बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए Can you give feedback to this? What happened? I will give you. You can come here next. But before that, we want to talk about this conversation. Anyone? What have you listed down? As a coach, what was the conversation like with the coachee? How did it go? कन्वर्सेशन जो था वो एक प्रिंसिपल के रूप में मैडम का टीचर से काफ़ी अच्छा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि काफ़ी अनुभवी प्रिंसिपल हैं और टीचर की बात को सुना और टीचर ने भी उतना ही तसल्ली से एक अच्छे लिसनर के रूप में उस बात को सुना, एक्सेप्ट की अपनी गलती और बच्चों के साथ उनका किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए उसके ऊपर उनकी बातचीत हुई और उनका इसमें स्पष्ट रूप से उनका एक अच्छी प्रशासक की भूमिका जो थी वो झलकती है मैडम की और टीचर ने भी बच्चों को, लेकिन एक थोड़ी सी इसमें ये नज़र आई कि बच्चों के लिए उन्होंने जो वो प्रॉब्लम बता रहे थे टीचर कि बच्चों ने मुझे डिस्टर्ब किया क्लास को, तो उन्होंने टीचर को ही टीचर को ही सुधरने के लिए कहा या उनको सुधार अपने शैली में, अपने कार्यशैली में सुधार करने को कहा, बल्कि बच्चों का कहीं भी उन्होंने वो हमेशा शरारती हद से ज़्यादा थे, नोटोरियस थे, लेकिन उन्होंने बच्चों का हर समय पक्ष ही लेते हुए नजर आई प्रिंसिपल मैडम। तो one main thing was it was not on equal terms. मैम ने बच्चों का, I mean this was a very destructive class. Too much, yeah. It was a little above the normal. So to what extent did the headmistress sympathize or empathize with this teacher? उनका ये रोल होना चाहिए था कि बच्चों के संबंध में भी वो चर्चा करती कि किस प्रकार से इन शरारती बच्चों को सुधारने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से इनको देख रही हूँ कि इस प्रकार के और उनको किस तरह से उनका सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया जाए या इस प्रकार के बच्चों के पेरेंट्स को बुला करके बात करनी चाहिए और इवन उनका क्लास रूम जो है उससे निकलने के बाद भी वो बच्चे उनसे ये कह रहे थे कि भाई हमें आपने डांट नहीं लगाई या जो भी है, तो उन्होंने उनको बिल्कुल जैसे माफ़ कर दिया, सपोर्ट कर दिया, तो वो ये थोड़ा सा biased हो गया। biased हो गया। This person here, he may have felt that मेरा प्रॉब्लम मैम ने ठीक से सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि मैम ने इनका पक्ष ले लिया, when actually they were indeed bad, indeed cruel, right? So she should have looked into both the perspective. Thank you. और टीचर की जो भूमिका थी जो पढ़ाते समय, हाँ ठीक, थैंक यू। Any other point to this? आप नोट कर रहे थे या आपके रोल प्ले के ऊपर फोकस कर रहे थे?
ही चाहिए। Exactly. और जो भी हो टीचर के साथ बाद में करें, लेकिन बच्चों के साथ जरूर उनका रिलेशन बातचीत होना चाहिए, ताकि इसी कॉन्टेक्स्ट उनको अच्छे से फ्रॉम बोथ साइड्स ऑब्जेक्टिवली देख सकें कि Face to face. प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो शी कैन टॉक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। पता नहीं ये बच्चे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वी डोंट नो, इज इट सम प्रॉब्लम इन देयर हाउस और इज इट अटेंशन, इज इट लैक ऑफ अटेंशन, डू दे नीड मोर अटेंशन, वी डोंट नो। तो इनके बारे में स्टडी करना भी प्रिंसिपल का वन ऑफ द रोल्स था बिफोर शी टॉक्स टू दिस पर्सन। और खासकर उन्होंने कहा कि मैं उस समय उसी कॉरिडोर में था जिस समय ये हो रहा था, तो एटलीस्ट उस समय जब उस कॉरिडोर में थी वहाँ पर और इतना क्लास डिस्टर्ब चल रहा था, तो मैं एज ए रोल